रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन में है, जहां पर वो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। शंघाई में रक्षा मंत्री आतंकवाद को लेकर जमकर गरजे। बैठक में आतंकवाद, शांति और सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर बात उन्होंने की। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं रह सकते और ये एससीओ समिट काफी ज्यादा अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि कट्टरपंथ, उग्रवाद, आतंकवादी सबसे बड़ी चुनौती है। अब सेफ नहीं है आतंकवाद के एपिसेंटर। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले हुए और इसी के बाद इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक क्षेत्रीय सहयोग का आह्वान करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन में है, जहां पर वो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक काफी ज्यादा मायनों में खास है। शंघाई में रक्षा मंत्री आतंकवाद को लेकर जमकर गरजे। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RADS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism and extremism issued during India's chairmanship symbolizes our shared commitment. Excellencies, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from translational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. These threats do not respect national boundaries, and they demand a unified response rooted in transparency, mutual trust, and collaboration. India reaffirms its resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations. On 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. तो आपने देखा आज किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद को लेकर गरजे। सुमित चौधरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुमित, आतंकवाद पर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की ही, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज वो कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
देखिए, बिल्कुल एससीओ की समिट में ना सिर्फ आप सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर ये बातें रखी, बल्कि ये कहाँ पे रखी एससीओ की समिट में, जहाँ पे चीन, पाकिस्तान जैसे कई देश मौजूद थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि ये भी कहा कि जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो पनाह देते हैं, शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। तो राजनाथ सिंह ने डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत क्लियर बातों में, स्टेटमेंट में ये जाहिर कर दिया कि अगर हमें आगे कॉपरेशन करना है, हमें लगातार जिस तरीके से एससीओ की समिट हो रही है, बातचीत हो रही है, इसको लेकर अगर हम चाहते हैं कि सभी एससीओ समिट्स के जो मेंबर्स आगे बढ़े, तो ऐसे में आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर भी बातचीत करनी होगी। और ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत हमेशा से ये मानता आया है कि आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चलते। जो लगातार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देते हैं, वो भी एक तरीके से आतंकवाद को ही पनाह दे रहे हैं। पूजा। जी, चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।